بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پچھلی کلاس میں ہم نے اسم مشتق کے متعلق پڑھا تھا کہ اسم مشتق کسے کہتے ہیں۔ دوبارہ یاد کیجیے، مصدر سے بنا ہوا اسم اس میں مصدر کہلاتا ہے، یعنی مصدر سے بنا ہوا اسم مشتق کہلاتا ہے۔ اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو خود کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے اسماء اور افعال بنتے ہیں۔ اس کی پہچان میں نے بتایا کہ اس کے آخر میں نون الف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور کاموں کے نام کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے۔ یہاں یاد کیجیے، اس میں مشتق جو مصدر سے بنے گا وہ اس میں مشتق کہلائے گا۔ کل ہم نے آپ کو اس کی 6 اقسام میں نے بتائی تھی۔ نمبر 1 اس میں فاعل، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل۔ نمبر 2 اس میں مفعول۔ نمبر 3 اس میں حاصل مصدر۔ 4 اس میں معاوضہ، اس میں معاوضہ، اس میں حالیہ۔ نمبر 6 اس میں صفت۔ اب ہم بتائیں گے کہ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں فاعل کا مطلب ہوتا ہے فعل کرنے والا، ڈوور، کام کرنے والا، وہ فاعل کہلاتا ہے۔ مصدر سے اس میں فاعل ہم نے بنانا ہے۔ یہاں ہم کہیں گے جیسے کہ کوئی بھی مصدر آپ لکھیں، کھانا ایک مصدر ہے، اس سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ کھانے والا، کھانے والا۔ ایٹ سے ایٹر، اس میں فاعل کیا بنے گا؟ کھانے والا۔ یہ والا جو ہے اس کے ساتھ ایک سابقہ لگائیں گے، اور والا ایک سابقہ ہے۔ سابقہ اسے کہتے ہیں کہ وہ حرف یا حروف جو کسی لفظ کے آخر میں، اس کے بعد، اس کے پیچھے اضافہ کرتے ہیں اور ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کی املاء بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ کلاس جب ہم لیں گے سابقے اور لاحقے آپ کو بتائیں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال کسی بھی مصدر کے آخر میں والا لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں فاعل بن گیا۔ ایک والا اسم کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، جیسے کراچی سے کراچی والا، لاہور سے لاہور والا، ایبٹ آباد سے ایبٹ آباد والا، ہری پور سے ہری پور والا، پشاور سے پشاور والا۔ جب والا کسی اسم کے آخر میں لگاتے ہیں تو وہ اس میں صفت بن جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے ایبٹ آباد کے ساتھ جب والا لگائیں گے، ایبٹونین، انگلش میں تو مختلف پریفکس اور سفکس استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پہ اردو میں یہ یاد کیجئے کہ والا جب کسی اسم کے آخر میں کے بعد ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں صفت بنتا ہے، اس میں صفت۔ لیکن اگر ہم کسی مصدر کے آخر میں والا لگائیں گے تو وہ اس میں فاعل بنے گا۔ اس طرح میں نے بتایا ہے کہ پینا کیا چیز ہے؟ لفظ دیکھیے یہاں پہ اسم نہیں ہے، یہ پینا ایک اسم مصدر ہے، اس میں ذات کیا وہ مصدر۔ اس کے ساتھ جب ہم والا اضافہ میں نے کر لیا یہاں پہ، یا اس کو کہتے ہیں کہ لاحقہ بعد میں لگتا ہے، تو یہاں اس میں فاعل ظاہر کرے گا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ والا سے پہلے کون سا ہے؟ اگر اسم ہے تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے، پلس والا تو یہاں اس میں
सिफ्त का काम करेगा। अगर मस्तर है और उसके साथ वाला लगा दिया तो यहाँ पे इसम फाइल बन जाता है। आप जैसा कि इंग्लिश में जानते हैं कि किसी भी इंफिनिटिव जो वर्ब होती है फर्स्ट वर्ब के साथ बाद जब आप ER का इजाफा करते हैं तो वो जैसे ओपन और फिर ओपनर ER का इजाफा कर, इसी तरह राइट लिखना, राइटर पढ़ना, रीड रीडर। तो यहाँ पे वॉक चलना, वॉकर, ER का आपने इजाफा लगा दिया तो वो अब डूअर बन जाता है, यानी इसमें फाइल काम करने वाला। यहाँ खाना के साथ खाने वाला, तो अब आपने देखा है कि ये इसमें फाइल बन गया। लिहाजा इसी तरह देखना, देखना के साथ आपने वाला का इजाफा किया, देखना से देखने वाला, ये ग्रामर के रूप से इसमें फाइल कहलाएगा। मुश्तक से निकला हुआ, मस्तर से निकला हुआ इसमें फाइल कहलाएगा। अगर हम दो इसकी पहचान क्या है, आखिर में वाला लगा देते हैं। जब बाद दफा ये सवाल आता है कि सुनना मस्तर से इसमें फाइल बनाइए, तो उसका तरीका क्या है कि आप उसके आखिर में सुनने वाला लिख लेंगे। लिसनर, सुनने वाला, लिसन और लिसनर, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया कि इसमें मस्तर से इसमें फाइल कैसे बनाया जाता है और इसमें फाइल किसे कहते हैं, यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। लेकिन इसमें फाइल और फाइल में थोड़ा फर्क है। जब हम जुमले में देखते हैं तो फाइल किसे कहते हैं, वो जो काम करता है या काम करने वाले को फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ इसमें फाइल और फाइल में थोड़ा फर्क ये है कि फाइल मस्तर से बनाया जाता है और वो जुमले में वो काम करने वाले को फाइल कहा जाता है, और यहाँ इसकी फाइल है। उसके बाद नंबर 2 है इसमें मफऊल। अच्छा, बात दफा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें फाइल की भी 2 किस्में हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है समाई और एक क्यासी होता है, बल्कि अभी समझ लें इसको ताकि बाद में आपको आसानी हो। इसमें फाइल की अक़साम 2 है। एक होता है समाई। समाई का मतलब होता है सुना सुनाया, अहले ज़बान से बना बनाया, कि वो उन्होंने लफ्ज़ पहले ही से बना दिया होता है, उसको समाई कहते हैं। और एक कहलाता है क्यासी, यानी क्यास कर लेना, फर्ज कर लेना, अपनी तरफ से कोई चीज और इजाफा कर लेना। जिस तरह वाला और समाई का मतलब होता है सुना सुनाया। ये यहाँ आपको मैं थोड़ी तफसील भी बता देता हूँ कि इसमें क्या है। जिस तरह के डाकिया डाक बांटने वाले को कहा जाता है। अब ये समाई है, अहले ज़बान ने बनाया हुआ है और ये बना बनाया कहलाएगा, सुना सुनाया कहलाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ या इसी फनकार, फन दिखाने वाला या फन करने वाला, कारीगर, काम करने वाला, कोई भी कारीगर। अब ये जो है वो समाई है। क्यासी के आखिर में वाला का इजाफा कर देते हैं तो वो इसमें फाइल बन जाता है। यहाँ मजीद इसकी जो तफसीर है वो बाद में आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह बनाया जाता है और क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। यहाँ आप सिर्फ इसमें मुश्तक की अक़साम को देखें। दूसरा मैंने जो इसमें ये मुश्तक की जो दूसरी किस्म है वो इसमें मफ़ऊल है। मफ़ऊल का मतलब होता है वो शय जिस पर कोई काम हुआ होता है या किया हुआ होता है, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। इसको भी बनाने का तरीका है कि जैसे खाना में जो तब्दीली करते हैं वो हुआ लगा देते हैं, खाया हुआ। यानी आप इंग्लिश में आप इसको देखें तो जो थर्ड पार्टिसिपल है उसका
ईडी का इजाफा कर देते हैं और उर्दू में हुआ का इजाफा कर देते हैं मस्तर के आखिर में, तो वो इसमें मफूल बन जाता है। खाना से खाया, खाया हुआ। देखना से देखा, देखा हुआ। और लिखना से लिखा हुआ। अब आपने देखा है कि हुआ जो है वो लाहिका लगा लेते हैं आखिर में, तो वो मस्तर के आखिर में इसमें फाइल बन जाता है। इंग्लिश में फाइल के आखिर में ईआर का इजाफा कर देते हैं और जो थर्ड पार्टिसिपल है फॉर्म ऑफ वर्ब की, वो इसमें मफूल का काम देती है। देखा हुआ। इसमें भी दो किस्म है, एक तो इसमें मफूल कियासी होता है और एक समाई होता है। समाई तो है जबान का बना बनाया होता है, वो लफ्ज जो है वो मफूल के तौर पर इस्तेमाल, जैसे मुर्दा मरा हुआ। कोई भी चीज आजमुदा, आजमुदा, आजमाया हुआ। इसमें मफूल, इसमें फाइल, इसमें मफूल। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो मैं इधर लिख देता हूं। इसमें मुआवजा, मुआवजा यानी उजरत, मजदूरी, लेबर, किसी भी काम का मुआवजा कैसे बनाते हैं। इसमें मुआवजा मस्तर से लिखना, लिखना एक मस्तर है और आपने इससे हासिल मुआवजा कैसे बनाना है, उसके आखिर में आपने छोटी ये लिखाई का इजाफा कर देते हैं, छोटी ये का लायका लगा लेते हैं। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाई। धोना, धुलाई, धोना मस्तर है, इससे धुलाई। सीना, कपड़े सीना मस्तर है। सिलाई यानी जो उजरत है किसी चीज की आप देते हैं उसको इसमें मुआवजा कहेंगे। लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, धोना से धुलाई, सीना से सिलाई। मैंने कपड़ों की 10 रुपए, सॉरी 100 रुपए सिलाई दी, 200 रुपए सिलाई दी, मैंने कपड़ों की 200 रुपए धुलाई दी। इसी तरह पढ़ाई की उजरत और मजदूरी, लिखना, लिखने वाले को अगर आप उजरत या कोई उसका मुआवजा या मजदूरी देंगे तो ग्रामर के रूप से वो इसमें मुआवजा कहलाएगा। यानी आपने मस्तर से इसम बनाया है, इसमें मुआवजा। अब हम देखते हैं इसमें हालिया कैसे बनाते हैं। मुश्त की चौथी किस्म जो है वो इसमें हालिया है। हालिया के लिए मस्तर आपने लिख रहा है लिखना। लिखना से हालिया कैसे बनाएगा, इसमें इजाफा लगाते हैं कि ता हुआ, ता हुआ, लिखता हुआ। अब देखें लिखना से लिखता हुआ, पढ़ना से पढ़ता हुआ, सुनना से सुनता हुआ। तो ता हुआ जिस तरह इंग्लिश में इजाफा करते हैं इसके अंदर ING का। लिखना से राइटिंग, रीडिंग, वॉक से वॉकिंग, लिसनिंग। तो यहाँ ING का ग्रेंड जिसे नाउन कहा जाता है उसका इजाफा कर देते हैं
اور اسی طرح معاوضہ بنانے کے لیے بھی آپ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے چھوٹی یا اور طرح کے مختلف طرح کے لائقے اور سابقے لگاتے ہیں۔ یہ کیسے لائقے، کون سے لائقے اور سابقے لگے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ پہچان کریں کہ یہ کون سا اسم ہے، مشتق کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد اس میں حاصل مصدر، یعنی مصدر سے حاصل کیا ہوا اسم اس میں حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر سے بنا ہوا اسم اس میں حاصل مصدر کہلائے گا۔ اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں دیکھنا ہے ہنسنا، ہنسنا سے حاصل مصدر ہنسی۔ مسکرانا، مسکرانا ایک مصدر ہے، اس سے جو اس میں وہ حاصل مصدر بنے گا مسکراہٹ۔ گھبرانا، گھبراہٹ۔ چلنا، چلنا ایک مصدر ہے، چلنا سے چلن۔ جلنا، جلنا سے جلن۔ تو طرح طرح کے مختلف جو ہے وہ اضافے کر کے لاحقے لگا کے ہم اس سے حاصل مصدر بھی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، اس میں صفت، یہ بھی حاصل مصدر سے اس کے آگے جو ہے وہ لاحقہ لگائیں گے اس قابل یا ناقابل کا، ایبل یا انیبل کا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے لکھنا مصدر ہے، اس سے حاصل مصدر لکھائی ہم نے بنایا تھا صفت میں لکھنے کے قابل، لکھنے کے قابل۔ کھانا، کھانے اور اس کے قابل کا جو ہے وہ اضافہ کر دیں تو کھانے کے قابل۔ پڑھنا مصدر ہے تو پڑھنے کے قابل، یہاں مقابل کا اضافہ آپ کر رہے تو اس میں صفت بن جائے گا مصدر سے۔ اب دوبارہ ذرا یاد کیجیے، اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ مصدر سے بنا ہوا اسم اس میں مشتق کہلائے گا۔ اس میں مشتق کی اقسام میں نے 6 آپ کو بتائی تھی، دوبارہ ذرا لکھیے۔ نمبر 1، اس میں فاعل۔ نمبر 2، اس میں مفعول۔ نمبر 3، اس میں حاصل مصدر۔ نمبر 4، اس میں معاوضہ۔ نمبر 5، اس میں حالیہ۔ نمبر 6، اس میں صفت۔ اوکے، یہاں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یہاں آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ کیا کیا اردو میں لاحقے لگیں گے مصدر کے ساتھ یا مصدر کے آخر میں تو وہ اس میں مشتق بن جائے گا۔ اب فاعل کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں فاعل یہ سب سے پہلے میں مصدر لکھ لوں گا، اس کے بعد آپ ایک اور کالم بنا لیجیے لاحقہ، یعنی سفکس جو بعد میں آپ نے
उसके बाद एक और कि लफ्ज़ कैसे बनेगा, इसमें इसम जो वजूद में आएगा वो प्रैक्टिस करें, बार बार लिखना। चल धोना, धोना एक मस्तर है। मैंने आपको बताया कि इसमें फाइल की बनाने के लिए उर्दू में जो लाहिका लगाते हैं मस्तर के आखिर में, वो वाला है। वाला का आपने लाहिका इजाफा करना है, तो धोने वाला इसम क्या बनेगा, धोने वाला। अब आप यहां जरा गौर करें कि मैंने दो किस्में बताई थी कि एक समाई होता है और एक क्यासी होता है। समाई से मुराद ये है कि अहले ज़बान का बना बनाया, यानी वो जो काम करने वाला है उसके लिए मुख्तस कर दिया गया है और उसके लिए खास कर दिया गया है वो लफ्ज़, लिहाजा वो समाई कहलाएगा। और क्यासी का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज़ का इजाफा कर देते हैं तो वो समाई बन जाता, क्यासी बन जाता है, यानी फर्ज कर लेते हैं या क्यास कर लिया जाता है। तो यहाँ हमने देखा है कि इसका यहाँ इसम जो बनेगा वो क्यासी, क्यासी यानी हमने क्यास कर लिया, अपनी तरफ से एक और इजाफा कर लिया, तो वो इसम फाइल के लिए खास हो गया या उसको फाइल को जाहिर करेगा। और यहाँ मैं लिखूंगा समाई। समाई का मतलब होता है कि सुना सुनाया, अहले ज़बान का बना बनाया। तो यहाँ हमने देखा है कि इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं धोबी, कपड़े धोने वाला, धोबी। अगला मफऊल क्या बनेगा, हमारे पास मस्तर तो एक ही है, धोना। धोने के लिए मैंने आपको जो लाहिका बताया है उर्दू में, वो मस्तर के आखिर में तब्दीली करके इसके हुआ लगा देते हैं, हुआ। जैसे मैंने हुआ, हुआ का आपने लाहिका लगाना है तो धोया हुआ, धोया हुआ यहां। और इसका समाई नहीं है, धोया हुआ। बाज के हैं, बाज के नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, आपने उर्दू में आखिर में हुआ लगा दिया तो यहाँ आपने देखा कि इसमें मफऊल बन गया, यानी वो इसम जिस पर कोई काम होता है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ एक किताब है, या टूटा हुआ कप है, या टूटी हुई पेंसिल है, या एक टूटी हुई पेंसिल है, कोई भी चीज है, यानी वो शय जिस पर कोई काम हुआ है वो इसमें मफऊल कहलाएगा। और मस्तर के आखिर में हुआ का लायका लगाएंगे तो वो इसमें मफऊल बन जाएगा, धोया हुआ। अब हम आते हैं हासिल मस्तर। मस्तर हमारा यही है, धोना। तो यहाँ हासिल मस्तर में इसके लिए कोई खास लायका नहीं है। बाद दफा जो है वो या लगा देते हैं, छोटी या। तो हासिल मस्तर धोना से धुलाई। बाद दफा आपने देखेंगे कि इसके हालिया, इसमें मुआवजा और इसमें हासिल मस्तर जो है वो एक ही लफ्ज़ होंगे, उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं होता। वो मुआवजा का काम भी देता है और हासिल मस्तर भी बन जाता है। अगला है मुआवजा। मुआवजा भी धुलाई हम कहेंगे इसी से, मस्तर धोना से निकला हुआ, मुआवजा धुलाई यानी उजरत या मजदूरी। जब आप किसी धोबी को कपड़े देंगे तो जब आप पैसे उसको देंगे तो आप क्या कहेंगे, इनकी धुलाई कितनी है, ठीक है, उसकी जो उजरत है वो कितनी है। तो इसके लिए भी खास लायका नहीं है, बल्कि एक जा है और एक और है। वो जब हम अगला सबक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको लायके लिखवाऊंगा कि ये लायके किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, या लायके लगाने से अल्फाज के आखिर में तो वो क्या चीज बन जाती है, फाइल बनता है, फेल बनता है, मफूल बनता है, या क्या बनता है। हालिया, हालिया का लायका है ता हुआ, मैंने बताया है, ता हुआ का इजाफा कर देते हैं इंग्लिश में। जैसा कि आपने इसके साथ मैंने बताया कि मफूल बनाने के लिए थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की या पास्ट पार्टिसिपल का ईडी
जो होती है इजाफा कर देते हैं तो वो इसमें मफूल बन जाता है। फाइल के आखिर में यार का इजाफा लगा लेते हैं और इसमें हासिल मस्तर के बाद दफा आईएनजी और मुख्तलिफ तरीके हैं उसके बनाने के। तो मुआवजा का ये दुलाई में लिख लिया। हालिया, हालिया का जो जायका है वो ता हुआ, भागता हुआ, लिखता हुआ, धोता हुआ, धोता हुआ। अब इसके लिए जो है वो क्यासी है, समाई कोई भी नहीं है। इसी तरह इसमें सिफ्त है तो मैंने इसका बताया कि इसके लिए होता है काबिल या ना काबिल, धोने के काबिल है या काबिल नहीं है, ये इसमें सिफ्त बन जाएगा। एक अलग का इजाफा लगाना है। वॉशेबल है, धोने लिखने के काबिल है, चलने के काबिल है, वॉकेबल है और इसी तरह पढ़ने के काबिल है। तो जब किसी भी मस्तर के आखिर में काबिल का इजाफा आप करेंगे तो वो इसमें सिफ्त बन जाएगा। लिहाजा यहाँ 5 तरह के हम इसम हासिल करते हैं मस्तर से, तो मस्तर से जो इसम हासिल करेंगे वो इसमें मुश्तक कहलाएगा। दोबारा याद कीजिए कि इसमें मुश्तक किसे कहते हैं कि वो लफ्ज जो मस्तर से बनेगा वो इसमें मुश्तक कहलाएगा। और इसमें मुश्तक की 6 अक़साम हैं। नंबर 1 इसमें फाइल, मफूल, हासिल मस्तर, मुआवजा, हालिया, सिफ्त। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि गिरा हुआ, अब ये यहाँ पे गिरा हुआ ग्रामर, ग्रामर की रू, सॉरी रू ये रू से है। अब यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर 1 हासिल मस्दर, इसमें फाइल। नंबर 3 इसमें मफऊल। नंबर 4 इसमें सिर्फ। अब आपने पहचान करनी है कि ये गिरा हुआ ग्रामर की रूप से ये कौन सा इसम है। ग्रामर मैंने आपको बताया कि हुआ। अब यहाँ पे देख लें कि वाला तो नहीं है, वो तो फाइल होगा। हुआ, हाँ ये है गिरा हुआ, इसमें मफूल है। हासिल मस्तर नहीं है, मुआवजा नहीं है, सिर्फ भी नहीं है। तो यहाँ आपने इसको सर्कल करना है कि इसमें मफूल है। ग्रामर की रूप से गिरा हुआ क्या है, इसमें मफूल है। अब एक नया लफ्ज लिखिए, कोई भी है। मैं लफ्ज है सिलाई, सिलाई। अब यहाँ और कीजिए क्या चीज है, सिफ्त है, हालिया है नहीं, सिफ्त की तो काबिल क्या नाकाबिल लगता है। हालिया ता हुआ, मुआवजा हाँ है, सीना से सिलाई, हासिल मस्तर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम आती है, एक ही आती है कि बगैर हो गया चीज। मफूल नहीं है, फाइल नहीं है। अगर फाइल होता तो इसके आखिर में सीने वाला लिखा होता, मफूल होता तो सिला हुआ होता, हासिल मस्तर हो सकता है, मुआवजा भी हो सकता है। अगर हालिया होता तो सीता हुआ था, सिफ्त होता तो सिफ्त सीने के काबिल होता। लिहाजा सिलाई ये ग्रामर की रूप से क्या है, इसमें एक इसमें मुआवजा, यहाँ पे आपने सर्कल करना है कि ये लफ्ज इसमें मुआवजा है। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह कॉलम बना लीजिए और 6 किस्म लिख लिए, मुख्तलिफ मसादिर लिखिए और फिर उसमें से इसमें अस्मा निकालिए। जो अस्मा निकलेंगे ग्रामर की रूप से वो इसमें मुश्तक कहलाएंगे। ये इसमें मस्तर और इसमें मुश्तक, खासकर 7th क्लास है, 7th या 7वीं क्लास जो जमात के तलबा हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 से 10 नंबर का सवाल जरूर आएगा। एक मस्तर दिया जाएगा या मस्तर दिया जाएगा तो उससे वो कहेंगे कि इसमें हासिल मस्तर बनाइए, इसमें फाइल बनाइए या मफूल बनाइए। या बाद दफ़ा लफ्ज़ दिया जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि ये इसमें मस्तर की मुश्तक की कौन सी किस्म से इसका ताल्लुक है।
अच्छा, इसी तरह मैं एक लफ्ज लिखता हूं मजलूम। मजलूम, अब यहां पहचानिए कि ये जो मजलूम है ये इसम में क्या चीज है, इसमें मुश्तक की कौन सी किस्म है, मजलूम। दूसरा मैंने लिखा है जालिम। अब आप बताएं, दोनों में पहचान करें। आपको 3-6 ऑप्शन होंगे या 4 ऑप्शन होंगे। क्या ये इसमें फाइल है, 1 2। क्या इसमें हासिल मस्तर है, नंबर 4। ये इसमें मफऊल है, नंबर 5। इसमें मुआवजा। अब आप पहचान कीजिए, मजलूम वो इंसान या वो शय जिस पर जुल्म किया हुआ होता है, यानी उस चीज ने जुल्म सहा होता है या जुल्म किया हुआ होता है। तो आप पहचानिए क्या आएगा, फाइल। फाइल अगर होता तो वो तो जालिम होता, जुल्म करने वाला। हासिल मस्तर तो है ही नहीं, और मफऊल है। हाँ, ये इस पर काम हुआ है, किसी चीज पर जो है वो मजलूम है, शख्स उस पर जुल्म किया हुआ है या उसने जुल्म सह हुआ है, तो इसमें मुआवजा भी तो नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है। लिहाजा ग्रामर की रूह से मजलूम इसमें मफऊल कहलाएगा। इसको आप दूसरा रास्ते जालिम। जालिम क्या होता है, जालिम जुल्म करने वाला, तो वो ग्रामर की रूह से इसमें फाइल कहलाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो काम करने वाला होता है डुगर, उसको इसमें फाइल कहलाते हैं। यहाँ मुआवजा भी नहीं है और इज्जत भी नहीं है। इसी तरह लफ्ज मैंने लिखा है खिलाड़ी। अब पहचानिए खिलाड़ी। खिलाड़ी ग्रामर की रूह से कौन सा इसम होता है। आप देखते हैं कि खिलाड़ी वही कहलाता है जो खेलता है, खेलने वाला होता है। तो इसमें फाइल है, ये डुगर है, काम करने वाला है। तो आप इस पर सर्कल करना है कि खिलाड़ी ग्रामर की रूह से इसमें फाइल है। तो जिस तरह बच्चों मैंने कहा है कि कॉलम बनाइए, इसमें मुश्तक के लिए उसकी 6 अक़साम लिखिए, मुख्तलिफ मस्दर लिखिए, और फिर आप उनसे मुख्तलिफ जो है वो इसम बनाइए। अब यहाँ मस्दर में दोबारा आना, आना, जाना। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही ये आपको समझ आ जाएगी कि ये इसम की कौन सी किस्म से ताल्लुक रखता है। अब आप चंद मसादर लिख लीजिए। मस्तर की जमा मसादर है। वैसे मस्तर तो अरबी ग्रामर में कहते हैं सादर होने की जगह, वो जगह जहां से कोई चीज निकलती है। तो आपने देख लिया है कि मस्तर तो वही शय होती है जिससे अस्मा और अफ़आल बनते हैं। अफ़आल कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, कौन से बनते हैं, जब हम फेल पर जाएंगे तो फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। फिलहाल तो जो मस्तर से अफ़आल बनते हैं ना, सॉरी अस्मा बनते हैं, उसके लिए आपको बताया गया था कि 6 किस्म के बनते हैं। अब आप मस्तर लिखिए, आना, जाना, सोना, देखना, रोना, सुनना। अब देखिए मैं सारे मस्तर लिख दिए, अल्फाज में ये कामों के नाम है, ये दो किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। रोना, ठीक है, मैंने लिख दिया। पीना, जागना, खरीदना, बेचना। अब आपने देखे कोई दुनिया में ऐसी अशिया ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको कहूं कि जाओ 2 जागना ले आओ, 2 खरीदना ले आओ, 2 बेचना ले आओ, 2 देखना ले आओ, रोना ले आओ, या कभी आपने पीना देखा है। और भाई कोई चीज है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर हम आपको इसके लिए मिलेगा कहां से, आपको ढूंढे से तो नहीं मिलेगा। लिहाजा ये गौर करना है कि ये लफ्ज जो आना है, जाना है, सोना है, देखना है, रोना है, ये ग्रामर की रूह से क्या चीजें हैं। और भाई ये कामों के नाम है। हम जो मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ एक्शन करते हैं और अफ़आल करते हैं, तो ये उनके जो नाम हैं वो मस्तर कहलाते हैं। अब आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि ये इसमें मुश्तक की कौन सी किस्म है। मैंने दोबारा आपको बता दिया कि यहाँ पे आप पहली किस्म लिखेंगे, इसमें फाइल, उसके बाद इसमें मफूल,
उसके बाद इसमें हालिया, इसमें सिफ्त, इसमें हासिल मस्तर और इसमें मुआवजा। अब आपको मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि जैसे कि खरीदना मस्तर है, मैं कहूँगा कि इसका वो बनाओ, इसकी सिफ्त बनाओ, तो क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप इसकी तब्दीली करेंगे या चेंज करेंगे और आप इससे हासिल मस्तर निकालेंगे, इसमें सिफ्त। तो आपने काबिल का जो है वो लायका लगा लेना है, लिहाजा खरीदने के काबिल, बाय एबल, खरीदने के काबिल, एबल है या अनेबल है। ये तो देखें, आप बाजार में जाते हैं तो देखें ये किताब या जूता खरीदने के काबिल नहीं है। यहाँ आपने देखा है कि ये किताब खरीदने के काबिल नहीं है, तो खरीदने के काबिल जो है ये सिर्फ है किसकी, किताब की, कि अनेबल है बुक, ये किताब खरीदने के काबिल नहीं है। इसी तरह आप कोई और इसको बनाएं, ये इसमें सिर्फ बनाया आपने खरीदना से, तो इस तरह मुआवजा बनाएं या इसको हासिल मस्तर बनाएं, खरीदने को तब्दील करें तो खरीदारी मैंने की, क्या की, खरीदारी कहां से निकला है, खरीदना से निकला है। इसको इसमें सिर्फ बनाएं खरीदने के काबिल या ना काबिल, खरीदता हुआ, और इसमें फाइल कैसे बनाएंगे, खरीदार, खरीदने वाला। यहाँ आपने देखा है कि ये समाई है, सुनाया हुआ है, अगर ना भी हो तो वाला लगा लें, लिहाजा खरीदना से खरीदार, और इसमें मुआवजा बनेगा खरीदारी, और इसमें हासिल मस्तर भी खरीदारी बनेगा, सिर्फ बनेगा खरीदने के काबिल या नाकाबिल, हालिया बनेगा खरीदता होगा। तो यहाँ मुख्तलिफ लाहिके लगाकर आप इसमें मुश्तक बना सकते हैं मस्तर से। मजीद इंशाअल्लाह ताला इसकी वज़ाहत करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।